Hello students, welcome to Meenakshi Gupta Physics classes. This is Meenakshi Gupta Physics teacher. This video I am making for the 10th class student and this is the last video for first chapter because after this video your first chapter will be completed. And in the last last video we discussed about the lenses, concave and convex lens, and we have discussed about the image formation of that. So today we will discuss about the lens formula, which is most useful for the numericals, and in boards you have to face one or two numericals that will be depend on the lens or mirror formula. So let's start with the lens formula. So lens formula gives relationship between object distance u, image distance v and focal length f of the lens. It expressed as 1 upon v minus 1 upon u equal to 1 upon f. There is a one thing which I am telling you कि we have discussed also about the mirror formula that is useful for the mirror. If the numerical will say about the mirror, you have to use 1 upon v plus 1 upon u equal to 1 upon f. That was mirror formula. And if the numerical say the lens, about concave lens, convex lens, then you have to talk about this formula 1 upon v minus 1 upon u equal to 1 upon f. That is the difference between both of them. The lens formula given above is general relation and is valid in all the situation for any spherical lens. कोई भी lens हो आपका, it is beneficial or useful for the both of them, concave or convex, for all positions of the object. चाहे आपकी object की position कहीं भी हो. Linear magnification produced by a lens gives the relative extent to which the image of an object is enlarged or diminished with respect to the object. Linear magnification, I can be say कि which type of image has formed. It defines the which type of image has formed. Like object से image बड़ी बनी है या छोटी बनी है, इस तरह से इसको आप पता कर सकते हैं. For a linear held normal to the principal axis of a spherical lens, the linear magnification, usually called as magnification भी कहते हैं, is expressed as the ratio of the height of the image to the height of the object. मतलब कितना आपने ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी और उसकी जो इमेज बनी वो बड़ी बनी छोटी बनी, दैट इज कॉल्ड योर मैग्निफिकेशन. यानी कि कितनी ऑब्जेक्ट की हाइट मैग्निफाइड और डीमैग्निफाइड हुई. लीनियर मैग्निफिकेशन इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय द लेटर एम. स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं. इफ स्मॉल एच बी द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट and h dash that of its image formed by the spherical lens, then the value of magnification m is given by. मतलब m magnification को represent कर रहा है, h dash is the image of height of image, h is the height of object. यानी कि कितनी कंपैरिजन की जाती है हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. इसको इस तरह से भी लिखते हैं कि m इक्वल टू v अपॉन u. v इज द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द image and u is the distance from pole to the object, or you can be write m equal to h dash upon h equal to v upon u. ठीक है. अब देखो यहाँ आगे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके न्यूमेरिकल्स में और थ्योरी में दोनों में, क्योंकि अब 10th में ऑब्जेक्टिव भी आने लगे तो ये पॉइंट्स अच्छे से याद करना, ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं. नेगेटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन सिग्निफाइज दैट इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड. अगर आपकी मैग्निफिकेशन माइनस आ रही है तो वो ये दिखाएगा कि जो इमेज बनी है वो रियल तो है लेकिन इन्वर्टेड है. अगर पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर एम की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इट सिग्निफाइज दैट द इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट. कैसी है? वर्चुअल इरेक्ट है आपकी. एम मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ इमेज. दोनों हो सकते हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी. ठीक है. नेक्स्ट है एम, यानी कि मैग्निफिकेशन ऑफ कॉनकेव लेंस इज पॉजिटिव. कॉनकेव लेंस के लिए एम हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा. और क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स के लिए कैसे भी हो सकता है. एम अगर 1 से बड़ा है तो यानी कि इमेज बड़ी होगी ऑब्जेक्ट की हाइट से. अगर एम 1 से छोटा है तो आपकी जो इमेज होगी वो आपकी छोटी होगी ऑब्जेक्ट की हाइट से. यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है. इसके बाद मैं 2 एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स आपको समझाऊंगी विच विल हेल्प यू टू सॉल्व द अदर न्यूमेरिकल्स ऑफ एनसीईआरटी एंड द अदर. और जो न्यूमेरिकल हम आगे डिस्कस करने वाले हैं वो आपके एनसीईआरटी के ही न्यूमेरिकल्स हैं. यू कैन चेक आउट. जो भी डाउट हो आप मुझे पूछ लेना. और ये वीडियो सब छोटी है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यही टॉपिक रह गया था लास्ट. इससे पहले मैंने जो बताया था उसमें यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स कॉनकेव इमेज फॉर्मेशन सब बता दिया था. तो आगे चलिए न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे. अब बिकॉज अभी हमने लेंस डिस्कस किया है तो दोनों न्यूमेरिकल लेंस के ही हैं. इस वीडियो के बाद मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी इसमें एक शीट दे दूंगी जिसमें बहुत सारे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस हो जाएंगे थ्योरेटिकल.
फिर उसको सॉल्व करके मैं उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगी विच विल हेल्प यू टू सॉल्व आउट द लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। तो ये है पहला है इसमें अ कॉन्वेक्स लेंस। लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स, ठीक है। हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है। देखो जो जो दिया होता है हम लिख लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंथ दिया है तो जो यू होगा वो माइनस का होगा, 18 सेंटीमीटर दिया है वो बाद में, और एफ क्या दिया है? प्लस 12 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड यानी कि यू हो गया। फ्रॉम द लेंस फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज पूछा है, यानी कि स्मॉल वी पूछ रहा है। बाय द लेंस एंड व्हाट इज इट्स नेचर, और नेचर पूछा है कि इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी। तो देखो कॉन्वेक्स लेंस था तो यू नेगेटिव हो गया, एफ पॉजिटिव है। लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे इसने लेंस की बात की है। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ से हमें v निकालना है तो v को वन साइड रख लो, बाकी दोनों सेकेंड साइड ले जाओ। तो 1/u प्लस 1/f इक्वल टू माइनस 1/1 माइनस का 18 और प्लस का 1/12। दोनों का एलसीएम लोगे 36, सॉल्व करोगे -2 + 3 और ये माइनस करके आपका 1/36 बचेगा प्लस का। तो v बराबर 36 हो गया प्लस का। प्लस का मतलब है जो आपकी इमेज होगी वो किस तरफ होगी? इस तरफ होगी। अगर ये आपका सेंटर है तो सेंटर से राइट हैंड साइड होगी, तो v पॉजिटिव होता है। तो इमेज आपकी रियल है और कैसी है? इन्वर्टेड है। रियल और इन्वर्टेड होगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। इन दिस इसमें दिया है अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। तो एफ की वैल्यू दी है 25 सेंटीमीटर और कॉन्वेक्स लेंस दिया तो एफ कैसा हो गया? पॉजिटिव। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी है वो होगी आपकी यू। फाइंड द नेचर, पोजिशन एंड साइज ऑफ द इमेज। पोजिशन यानी कि v पूछ रहा है, नेचर पूछ रहा है कैसी बनेगी, और साइज पूछ रहा है यानी कि हाइट भी पूछ रहा है। कैन इट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, और स्क्रीन पर इसे ले सकते हैं या नहीं। तो जो वर्चुअल होती है वो स्क्रीन पर नहीं आती, जो रियल होती है वो स्क्रीन पर आ जाती हैं। तो देखो h इक्वल टू 2 दिया है, f 25 और u दिया -10। तो पहले हम v निकालेंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f करके। तो यहाँ आ जाइए 1/v बराबर 1/u प्लस 1/f, जैसे ऊपर सॉल्व किया है। तो 1/v बराबर माइनस का 1/10 और प्लस का 1/25। 1/v इक्वल टू -5 प्लस 2/50 या 1/v बराबर -3/50 या v बराबर -50/3 और v बराबर -16.7 सेंटीमीटर आ गया। सिमिलरली अब हमने ये तो निकाल ली आपकी इमेज कहाँ बनेगी। हमें निकालना का है हाइट ऑफ द इमेज भी निकाल ली। तो हमें रिलेशन मैग्निफिकेशन का ही पता है कि h'/h होता है मैग्निफिकेशन, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v/u। v है, u है और h दिया है, हमें h' निकालना है, ठीक है। तो h' बराबर v/u, h को इधर ले जाएंगे h' v दिया निकाला हमने यहाँ पे -16.7, यहाँ से उठा लिया ये आ गया, माइनस का ही आया। h u दिया था -10, यहाँ रख दिया, और h हमें दिया था 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वाला 2 सेंटीमीटर प्लस का यहाँ पुट कर दिया। तो h' बराबर हो गया 3.4 सेंटीमीटर, ये आ गया। इमेज कैसी बनेगी? इमेज इज वर्चुअल, ठीक है। कैसी बनेगी? वर्चुअल, क्योंकि कैसा है? माइनस की vi, अगर प्लस का आता तो रियल और माइनस है तो वर्चुअल। यहाँ आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। जिसको जो भी डाउट हो आगे पीछे की वीडियोस स्टार्टिंग से 1 2 3 करके मैंने डाला है, क्लास 10th वीडियो 1 वीडियो 2 वीडियो 3 इस तरह से, तो आप वो कर सकते हो। उसमें सारी वीडियोस एक एक करके देखिए, देन यू विल लर्न इट द चैप्टर फर्स्ट विच विल बी यूजफुल फॉर द बोर्ड्स, for your boards and the further studies. So please keep watching and like, share, subscribe, press the bell icon if you have not done yet to be have the updated, and please we continue with the next video क्योंकि वो बहुत important होने वाली है। मैं उस पर questions कराऊंगी जो most important है for the boards, as you are preparing for your boards also to getting instead of getting with the getting knowledge. So keep healthy, stay at home, घर बैठो इंडिया, and do your study. डोंट बी लैक इट, बिकॉज अगर बोर्ड्स जो है वो आपके टाइम पर ही होंगे तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।